सतनाम सतनाम करता पुरख करता पुरख निर्भव निर्भव निर्वैर निर्वैर अकाल मूरत अकाल मूरत अजूनी सैभं अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप गुर प्रसाद जप आद सच आद सच जुगाद सच जुगाद सच है भी सच सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨ ਚੱਲੈ ਨਾਲ ਕੇਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕੇਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਹੁਕਮੀ ਉਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਆ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਆ ਹੈ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਨ ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆ ਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇਹ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰਦੇ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਟੋਟ ਕਾਥੇ ਕਾਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਈ ਖਾਹੇ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ ਨਾਨਕ ਵਿਖਸੈ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ ਆਖੈ ਮੰਗੈ ਦੇਹ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦੁਸੈ ਦਰਬਾਰ ਮੁਹਾਉ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਤਰੇ ਪਿਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦਵਾਰ ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨੋ ਨ ਜਾਈ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਏਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਹਾਏ ਕਰੀ ਜੇਤੀ ਸੇਠੋ ਪਾਈ ਵੇਖਾ ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਏਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲੈ ਸਭ ਕੋਏ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਏ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕੇ ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸ ਧਰੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣੇ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਝਈ ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਏ ਕਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਤਵਲ ਆਕਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ ਸੁਣਿਆ ਪੋਹਿ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਹੋ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਿਆ ਈਸ਼ਵਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦੋ ਸੁਣਿਆ ਮੁਖ ਸਾਲਹਣ ਮੰਦੋ ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ ਸੁਣਿਆ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਹੋ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ ਸੁਣਿਆ 68 ਕਾ ਇਸਨਾਨ ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਭਾਵੈ ਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ ਸੁਣਿਆ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹ ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ
ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ। ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ ਮਨ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧ ਹੈ। ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ, ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ, ਮੰਨੈ ਪਥਿਓਂ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। ਮੰਨੈ ਮਗ ਨਾ ਚੱਲੈ ਪੰਥੋ, ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇ ਤੀਸਨ ਬੰਧੋ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦਵਾਰੋ, ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰੋ। ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ, ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨ ਭਿਖ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣਾ ਮਨ ਕੋਏ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰੋ, ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਤਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ, ਧਵਲੇ ਉੱਪਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਫਿਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ। ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ, ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੁਰੀ ਕਲਾਮ। ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੇਤਾ ਹੋਏ। ਕੇਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਆ ਰੂਪ, ਕੀਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆਓ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ। ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ। ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ। ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਪਗਸਾਰ, ਅਸੰਖ ਮੋਨ ਲਿਵ ਲਾਏ ਤਾਰ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖੰਦ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ। ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ, ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੈ ਭਾਰ। ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵੈ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ, ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ। ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ, ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ। ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ। ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਬਖਾਣ, ਜਿਨੇ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੇ। ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤੇ ਪਾਹੇ, ਜੇ ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾ ਨਾਉ। ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰੋ ਸੋਖੇ। ਹੈ ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਨ ਲਈਐ ਓਹ ਧੋਏ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਾ ਸੰਗ, ਓਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹਿ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਭਉ ਜਾਹੋ। ਤੀਰਥ ਤਾਪੋ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨੋ, ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨੋ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਓ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਵਸਤ ਆਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ, ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤੇ ਕਵਣ ਵਾਰੋ। ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਬਾਹੋ, ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰੋ। ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ। ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ, ਜੇ ਲਿਖਨ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ। ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁਤ ਮਾਹੁ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਾ ਕਰਤਾ ਸੇਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ, ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ, ਇਕ ਦੂ ਇਕ ਸਿਆਣਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪਉ ਜਾਣੈ, ਅੱਗਾ ਗਿਆ ਨ ਸੋਹੈ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲਖ, ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ। ਓੜ ਕੋੜ ਭਾਲ ਥੱਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿਨ ਇਕ ਬਾਤ। ਸਹਸ 18 ਕਹਿਨ ਕਤੇਬਾ, ਅਸਲੂ ਇਕ ਧਾਤ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ। ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨ ਪਾਈਆ। ਨਦੀਆਂ ਤੈ ਬਾਹ, ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ। ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ, ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ। ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨ ਹੋਵਨੀ, ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨ ਵਿਸਰੈ। ਅੰਤ ਨ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਕਰਨੈ ਦੇਣ ਨ ਅੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ, ਤਾਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਹੇ। ਇਹੋ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ। ਏ ਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜੇ ਵਡ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਆਪੇ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤੇ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤੇਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਕੀਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋਧ ਅਪਾਰ,
केते अगणत नहीं विचारो, केते खप टुटै बेकार, केते लै मुकर पाहे, केते मूर्ख खाही खाहे, केते दुख भूख सदमार, ए पे दात तेरी दातार। बंद खलासी भाणै होए, होर आख न सकै कोए, जे को खाए को आखण पाए, ओह जाणै जेतिया मोह खाए, आपे जाणै आपे दे, आखै से पे के के, जिस नो बख्शे सिफत सालाह, नानक पातशाही पातशाह। अमुल गुण अमुल वापार, अमुल वापारिये अमुल भंडार, अमुल आभै मुल लै जाए, अमुल पाए मुला समाहे, अमुल धर्म मुल दीवान, अमुल तुल अमुल प्रमाण, अमुल बख्शीस मुल नीसान, अमुल कर्म अमुल फुरमान, अमुलो अमुल आख्या ना जाए, आख रहे लिव लाए, आखै वेद पाठ पुराण, आखै पढ़े करह बख्यान, आखै बरमे आखै इंद, आखै गोपी तै गोविंद, आखै ईश्वर आखै सिद्ध, आखै केते कीते बुद्ध, आखै दानव आखै देव, आखै सुर नर मुन जन सेव, केते आखै आखण पाहे, केते कह उठ उठ जाहे, एते कीते होर करे, ताख न सकै के जेवड़ भावै तेवड़ होए, नानक जाणै साचा सोए, जे को आखै बोल विगाड़, तां लिखिया सिर गावारा गावार। सो दार केहा सो कार केहा, जित भय सर्व संभाले, बाजे नाद अनेक संखा, केते बावण हारे, केते राग परिस्यो कईन, केते गावण हारे, गावै तोनो पौण पाणी बह संतर, गावै राजा धर्म द्वारे, गावै चित गुप्त लिख जाणै, लिख लिख धर्म विचारे, गावै ईश्वर बर्मा देवी सोन सदा सवारे, गावै इंदे दासन बैठे देवतियां दर नाले, गावै सिद्ध समाधि अंदर, गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी, गावै वीर करारे, गावन पंडित पढ़न रखीसर, जुग जुग वेदा नाले, गावै मोहनिया मन मोहन, सुरगा मच पयाले, गावन रत्नों पाए तेरे 68 तीर्थ नाले, गावै जोध मां बलसूरा, गावै खाणी चारे, गावै खंड मंडल वर भंडा, कर कर रखे तारे, सेई तुदनो गावै जो तुद पावन, रते तेरे भगत रसाले, और केते गावन से मैं चित न आवन, नानक क्या विचारे, सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई, है पी होसी जाय न जासी, रचना जिन रचाई, रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी, माया जिनो पाई, कर कर वेखा कीता अपना, जिव तिस दी वडियाई, जो तिस भावै सोई करसी, हुक्म न करना जाई, सो पातशाहो साहा पात साहिब, नानक रहन रुजाई। मुंदा संतोख सरमपत झोली, ध्यान की करੈ विभूत, चिंता काल कुआरी काया, जुगत डंडा प्रतीत, आई पंथी सगल जमाती, मन जीतै जग जीत, आदेश तिसै आदेश, आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, भुगत ज्ञान दया भंडारण, घट घट वाजै नाद, आप नाथ नाथी सब जाकी, रिद्ध सिद्ध अवरा साध, संजोग विजोग दोए कार चलावै, लेखे आवै भाग, आदेश तिसै आदेश, आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, एका माई जुगत व्याई, तिन चेले प्रवाण, एक संसारी एक भंडारी, एक लाए दी बाण, जिव तिस भावै तिवै चलावै, जिव होवै फुरमान, ओह वेखै उना नदर न आवै, बहुता एहो विडाण, आदेश तिसै आदेश, आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, आसन लोए लोए भंडार, जो किछ पाया सो एका वार, कर कर वेखै सिरजनहार, नानक सच्चे की साची कार, आदेश तिसै आदेश, आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, एक दूजी भाव लख होए, लख होवै लख बीस, लख लख गेड़ा आखिया है, एक नाम जगदीश, एक राहे पत पवड़िया, चढ़िया होए कीस, सुन गल्ला आकाश की, कीटा आई रीस, नानक नदी पाई है, कूड़ी कूड़ा ठीस, आखण जोर चुपै नह जोर, जोर न मंगण देण न जोर, जोर न जीवन मरण नह जोर, जोर न राजमाल मन सोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटै संसार, जिस हथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच न कोए, राती रुती थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जीए जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथै सोहन पंच परवान, नदरी कर्म पवै नीसान, कच पकाई उथै पाए, नानक गया जापै जाए, धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म,
केते पवन पानी वै संतर, केते कान महेश, केते बरमे काट कड़िया है रूप रंग के वेश, केतिया कर्म भूमि मेर केते, केते तूप देश, केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते, केते देवी वेश, केते देव दानव मुन केते, केते रत्न समुंद, केतिया खाणी केतिया बाणी, केते पात नरिंद, केतिया सुरती सेवक केते, नानक अंत न अंत, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कोट आनंद, सरमखंड की बाणी रूप, तिथै घाड़त घड़िया बहुत अनूप, ताकियां गल्लां कथियां न जाहे, जे को कहे पिछै पछताए, तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध, तिथै घड़िया सुरा सिधा की सुध, कर्मखंड की बाणी जोर, तिथै होर ना कोई होर, तिथै जोध महाबल सूर, तिन में राम रहया भरपूर, तिथै सीतो सीता में ममाहे, ताके रूप न कथने जाहे, ना ओहे मरह न ठागे जाहे, जिनकै राम बसै मन माहे, तिथै भगत वसै के लो, करै आनंद सच्चा मन सोए, सच खंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल, तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथै ता अंत न अंत, तिथै लो अलो आकार, जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार, ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ, ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਪਾਉ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਉ, ਭਾਂਡਾ ਪਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤੋ ਤਿਤ ਢਾਲੇ, ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मपनि सा रे सा नि सा पनि प म ग रे सा रे ग म ग रे, पार ब्रह्म की जिस मन नानक तिस है नानक तिस है, न लग है दुख पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिस है ना लागे दुख। पार ब्रह्म की जिस मन भूख,
हर्ष से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज बहुत प्यारी शिक्षा दे रहे हैं और हमें भरोसा भी दिला रहे हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गृहस्थ में सोई निर्वाण, गृहस्थी में रहकर भी, इस संसार में रहकर भी वो निर्लेप है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रह के निर्लेप है, कीचड़ उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गृहस्थी, ये गृहस्थ धर्म जिसमें हम हैं, गृहस्थ आश्रम जिसे कहते हैं। एक होता है सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगलों में चले जाना, नाम जपने, प्रभु को पाने। एक होता है गृहस्थ आश्रम। कोई मौन धारण कर लेता है, कोई खाना बंद कर देता है, कोई बात करनी मिलना बंद कर देता है। उदास होकर कोई शमशान घाट में मड़ियों मसानों में बैठ के समाधि लगाते हैं कि मन उदास हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज यहाँ पे समझा रहे हैं कि इनमें से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा सिंपल सा मार्ग है गृहस्थ का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बस इसमें जो निर्वाण रह गया, इस संसार के कीचड़ में गृहस्थ धर्म में रहकर भी जो कमल की तरह निर्लेप रह गया, वो पालेगा प्रभु को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और आगे इतनी आसान भाषा में समझाया कि क्या कर तू, बस गृहस्थ में सोई निर्वाण, वो निर्लेप रहेगा जो गृहस्थी में रहकर। कौन? अन्य दिन कीर्तन केवल बख्यान, बस रोज नित्य नियम से कीर्तन कर ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो रोज अमृत ले उठ के गुरु की कीर्ति करे, उस्तत करे, वो गृहस्थ में रहते हुए भी निर्वाण रहेगा, निर्लेप हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमारे गुरुओं ने इस चीज़ के लिए सख्त मनाही की है, 10 गुरुओं ने, कि जंगल में जाके सब कुछ छोड़ छाड़ के विरक्त होने की ज़रूरत नहीं है, मन को विरक्त करने की ज़रूरत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। शरीर विरक्त होने से मन विरक्त नहीं हो जाता, ज़बान के चुप होने से मन चुप नहीं हो जाता, शरीर के झुकने से मन नहीं झुक जाता। और अगर शरीर ना भी झुके, मन झुक जाए, ज़बान ना भी चुप करे, मन चुप कर जाए, बात बन जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु प्रसाद अपन आप सुझाए, तिसकी जानो तृष्णा बुझाए। जिसे स्वयं का ज्ञान हो गया गुरु की कृपा से, उसकी तृष्णा खत्म हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और की चाहत खत्म हो जाती है अगर अपना ज्ञान हो जाए, जिसे आत्मज्ञान कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साध संग हर हर जस कहते, सर्व रोगते ओ हर जन रहते। साधु की संगत में बैठकर जो नाम जपते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्संगत में बैठकर जो नित्य नेम से नाम जपते हैं, कितनी बड़ी बात कही है, सर्व रोगते ओ हर जन रहते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ पर आत्मिक रोगों की बात की गई है, चाहे दुनियावी रोग भी ले ले, सर्व रोग कह दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काम क्रोध लोभ अहंकार के रोग खत्म हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक ऊपर जिस जन की आशा तिसकी कटिए, जिसका आसरा एक हो जमदूत हाथ नहीं लगा सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 2 3 4 10 आसरे नहीं, केवल एक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक तकिया परोसा तेरा और सबे टाइयाँ टेरियाँ। ये बाबा नंद सिंह जी ये धारणा पढ़वाया करते थे। बजाना बेटा, बजा। एक तकिया परोसा तेरा और सबे टाइयाँ टेरियाँ।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक ऊपर जिस जन की आशा, जिसका विश्वास केवल एक पर आ गया, एक ओंकार, उस परमात्मा पर आ गया, उसके बंद खलासी हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसे न लागे धूख। जिसे नाम की भूख जाग जाए कि अमृतला कब होगा, कब मैं नाम जपूंगा, या पूरा दिन जब समय मिले मैं नाम जपूँ। जिसे भूख लग जाए नाम की कि एक शब्द और सुन लो, एक पाठ और कर लो, कहते उसके जीवन में से दुख खत्म हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गृहस्थ में सोई निर्वाण, इस गृहस्थी में वो निर्लेप है जो नित्य नेम से कीर्तन सुनता है, कीर्तन करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कीर्तन का अर्थ है गुरु की कीर्ति, गुरु की उस्तत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। गृहस्थ में सोई निर्वाण, सोई निर्वाण। गृहस्थ में सोई निर्वाण, सोई निर्वाण। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज विराजमान है अनंतपुर साहब में। एक माता पिता रोते हुए आ गए। बड़ी प्यारी घटना है और एक घटना में 3 साखियां हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खोल कर समझा दिया एक एक डिटेल में कि गृहस्थ धर्म कैसा होना चाहिए और अगर साधु बनना है तो कैसा होना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चॉइस हमारी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास एक दंपत्ति आ गया रोते हुए, माता पिता। बेनती की पाछा हमारा एक लड़का, जवान नौजवान लड़का, बड़ा ऊंची अवस्था का मालिक है, नित्यनेम करता है, अमृतवेला संभालता है, सारे काम करता है और हर काम में निपुण है, सियाना है। अचानक गायब हो गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितने महीने हो गए नहीं मिल रहा, अचानक चला गया। हमने बहुत कोशिश की, सब जगह भटक के आखिर में आपके पास आए हैं। तरस करो, हमारा इकलौता बेटा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहाँ चला गया है कुछ नहीं पता, है नहीं है कुछ नहीं पता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भाई दया सिंह जी को अपने पास बुलाया, कहने के पालकी लेकर जाओ, पालकी ध्यान देना। और फलानी जगह पे पहाड़ के गुफा में वो बैठा है, इनका बेटा, समाधि लगाकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे लेकर आओ। वो नहीं आएगा, कहना हमने बुलाया है तो आ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो पूछा पाछा पालकी क्यों? कहने लगे उसकी शरीर में ताकत नहीं है, वो चलकर नहीं आ पाएगा, आपको पालकी में बिठाकर ही लाना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो गए भाई दया सिंह जी सेवादारों को ले जाकर उसी जगह पे गए जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने बताया था। अंदर एक साधु समाधि लगा के बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुबला पतला शरीर हो चुका है और समाधि में बैठा है। पास में जाके आवाज़ दी, उसने आंखें खोली, कहने लगे चलो हमारे साथ। उसने कहा आप कौन हो? मैं कहीं नहीं जाना चाहता, आप लोग चले जाओ। तो कहा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने हुक्म दिया कि आपको लाने के लिए। तो जैसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का नाम सुना, उठ खड़ा हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि मेरे गुरु ने बुलाया है, चलो। तो चलने की हिम्मत नहीं, तो कहा उन्होंने पालकी भेजी, इसमें बैठो। तो पालकी में बैठ गया, उसे लाया गया अंदर दीवान में। उठा, माता पिता देखकर बहुत परेशान हुए, उसे गले से लगा रहे हैं। माता पिता बेटे को गले से लगा रहे हैं पर बेटे का कोई मोह नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो ऐसे लग रहा है जैसे फॉर्मेलिटी कर रहा हो।
और जब हट गए तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चरणों में गिर पड़ा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उसे उठा के पूछते हैं, भाई क्या कर रहा था वहाँ गुफा में बैठा? कैसे समाधि लगा रहा था, मन जोड़ने की कोशिश कर रहा था नाम जपते हुए। कहते जुड़ा मन? कहते पाछा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। कहते क्यों गया तू गुफा में, सब कुछ छोड़ छाड़ के, माता पिता को छोड़ के, अपना गृहस्थी छोड़कर तो क्यों पहाड़ों की गुफा में जाके बैठ गया बिना किसी को बताए? कह लगे पातशाह एक दिन मैं कीर्तन छन कर रहा था यहीं पर आपके पास ही चरणों में, तो रागी कीर्तनी सिंहों ने ये शब्द पढ़ा, ये मन सच संभाले, सदा सच संभाले, ये मन प्यारे सदा सच संभाले, सदा सच कुटुंब तुझे देखना, चलना ही तेरे नाल, साथ तेरे चलना ही तिस नाल क्यों चितलाए, ऐसा कम मूल ना कीजे जित अंत पछताए, ये मन प्यारे तुम सदा सच संभाले, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये शब्द चल पड़ा, ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले। गुरु अमरदास जी कह रहे, ए कुटुंब तुझे दिखदा चले नहीं तेरे नाल। ये जो परिवार तू देख रहा है, रिश्तेदार देख रहा है, जब मुसीबत आएगी तेरे साथ कोई नहीं चलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साथ तेरा चले नहीं, जो तेरे साथ चलेंगे नहीं उनके साथ अपना मन क्यों लगा रहा है, तिस नाल क्यों चित लाइए। ऐसा कम मूल्य ना कीचे जित अंत पछताई। ऐसा काम करता है कि वो जिसमें अंत में पछताना पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो अच्छा ये शब्द सुना, मेरे सीने में तीर लग गया, बैराग जाग गया कि जब कोई अपना है ही नहीं, साथ किसी ने चलना नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है दुख में, तो मेरा मन गृहस्थ आश्रम से उखड़ गया। तो मैं वहाँ जाके बैठ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, तूने आधा शब्द पढ़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आगे की पंक्तियां भी तो पढ़ लेता, उसमें क्या लिखा है, क्या लिखा है, श्रवण कीजिए। सतगुरु का देश सुन तू होवे तेरे नाले। सतगुरु का देश सुन तू होवे तेरे नाले। कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले। कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले। ये मन प्यारिया तू
सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले। तूने गुरु का उपदेश क्यों नहीं सुना? तूने आधी पंक्तियाँ पढ़ के तूने अर्थ निकाल के तू चला गया जंगल में, गुफा में। आगे की पंक्तियाँ हैं कि सतगुरु का उपदेश सुन, तो गुरु जो कह रहे हैं उस उपदेश को मान। तो जिसे ढूंढने गया है वो तेरे साथ में ही तो है अंदर। हर से बोलिए धन गुरु नानक। काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा लेपा तो है संग समाई। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे तो बाहर ढूंढ रहे वो तेरे भीतर है, बाहर भीतर एक को जानो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। तो कहने का पाचा, जब सब कुछ झूठ है तो फिर गृहस्थ में क्यों रहना? मन करता है विरक्त होकर अलग बैठ जाना। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने यहाँ पे बहुत डिटेल में समझाया साथ संगत जी, बहुत डिटेल में। कहने लगे मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो साधु बाहर बैठे हैं वो गलत हैं, नहीं। रास्ते दो हैं, दोनों को समझ ले कैसे होने चाहिए। तो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठे हैं, उसमें और गृहस्थ में रह के नाम जपने में, दोनों में बड़ा अंतर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत अंतर है। ये जो हम प्रकरण ले रहे हैं ना, आज शायद हमें लगे हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हमारी अभी अवस्था नहीं है छोड़ छाड़ के जाने की। पर जिस रास्ते पे हम चल पड़े हैं ना सत्संग जी, विश्वास करना एक दिन आएगा मन करेगा सब छोड़ के निकल जाए। प्यार से बोलिए मेरा बार बार मन करता है छोड़ के चला जाऊँ, बार बार मन करता है। पर हुक्म है महापुरुषों का रुका हुआ हूँ कि संगत को अमृतुल्य से जोड़ना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। जैसे गुरु की मर्जी, जैसे कराए। पॉइंट यहाँ पर ये है, आज हो सकता है कई लोगों को लगे कि ये प्रकरण हमारे किस काम का, पर जिस रास्ते पे आप चल पड़े हो ना, अमृतुल्य उठ के नाम जपना जिन्होंने नेम बना लिया, मन विरक्त होता जाएगा। गृहस्थ में रह के भी गृहस्थ से उपराम होता जाएगा, बीच में रह के भी खुशी में रह के मन उदास होता जाएगा। और ये चाहिए, गुरुमुख बहु माहे अकेला, वाणी कहती है ये अवस्था चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई चीज़ अच्छी ना लगे सिवाय नाम के, अंदर ही अंदर इंसान उदास रहे, बाहर चाहे हंसे, अंदर से उदासी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते लगे मैं तुझे समझाता हूँ। कहते जो साधु हैं, जो घर बार छोड़कर बाहर बैठ के नाम जप रहे हैं, समाधि लगा रहे हैं, वो ऐसे हैं मानो मैदान में जंग कर रहे हैं। मैदान में, खुले मैदान में चारों तरफ से हमला होता है, कहीं से भी चोट लग सकती, कहीं पे भी वार हो सकता है। खुला मैदान है। जो साधु बंदगी कर रहे हैं घर बार छोड़कर, पॉइंट को समझना। कहते हैं वहाँ पर कोई बहुत बलशाली या बहुत ज़्यादा कोई ताकतवर होगा वही बच सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खुले मैदान में जंग करना एक माहिर महारथी चाहिए। धन गुरु नानक। महारथी चाहिए, कोई भाव के बहुत कमाई वाला चाहिए, जो बाहर बैठ के सब कुछ छोड़ छाड़ के नाम जपे। हर कोई नहीं कर सकता। जाएगा मार खा के आ जाएगा, जाएगा मार खा के आ जाएगा। बार बार चारों तरफ से युद्ध हो रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पॉइंट समझ रहे? खुला मैदान, खुले मैदान में जब लड़ाई होती है तो कहीं से भी हमला हो सकता है। खुला मैदान है, जब आदमी घर बार छोड़ के बाहर जाके बैठता है तो काम, वासना, क्रोध, लोभ सब बहुत ज़्यादा जोर डालते हैं उल्टा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आदमी जाता तो है नाम जपने, उल्टा हार कर मार खा के आ जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई विरला होता है जो उसमें पार कर जाए, ज़्यादा करके नहीं कर पाते। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज समझा रहे हैं और कहते गृहस्थ आश्रम ऐसे है जैसे युद्ध तो चर करना ही है, चाहे मैदान में हो चाहे गृहस्थ में। पर गृहस्थ आश्रम में इस प्रकार से युद्ध है कि जैसे किले में बैठ के कोई लड़ रहा हो। अब अपने किले में बैठा है, वहाँ से वार कर रहा है पर उस पर वार हो नहीं सकता। हर से बोलिए धन गुरु नानक। वार करेगा दुश्मन पर पहुँचेगा नहीं, किला रोक लेगा। भाव गृहस्थ आश्रम में तुम्हारी गुरु ने धर्मपत्नी दी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वासना जागे तो उसके लिए हमें साधन दिया है। गृहस्थ आश्रम में आदमी यहीं पे आके हारता है हर कोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम सबके लिए, चाहे स्त्री हो चाहे मर्द हो। गृहस्थ आश्रम में हम किले में बैठे हैं, इसलिए तो कहा है, कितने क्लियर कह दिया है
एक का नारी जति पर नारी ती पे अन खाने। जिस इंसान की एक नारी है और जिस स्त्री का एक पति पर ध्यान है, अपने पति पर, दूसरे पे नहीं, पतिव्रता है, और पति का सिर्फ पत्नी के अलावा दूसरी किसी स्त्री पे ध्यान नहीं है, वो जति गिना गया है वाणी में। गृहस्थ में रहकर भी जतियों का खिताब मिलता है उसे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक युद्ध है मैदान में, एक युद्ध है किले में। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहते पास वो कहने लगा, इसका नाम आया है आनंद सिंह, इस लड़के का नाम आनंद सिंह। कहने लगा पाचा और थोड़ा विस्तार से बताइए। तब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने एक साखी सुनाई बड़ी प्यारी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि साधु हो तो कैसा और गृहस्थी हो तो कैसा। कहने लगे चॉइस कर ले तुझे क्या करना है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। दो साखियाँ सुनाई गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने यहाँ पर, हम दोनों श्रवण करेंगे। आज दो पंक्तियाँ पढ़ लें। गृहस्थ में सोए निर्वाण, सोए निर्वाण, सोई निर्वाण, सोई निर्वाण। गृहस्थ में सोए निर्वाण, सोए निर्वाण, गृहस्थ में सोई निर्वाण, सोई निर्वाण। अन्य दिन कीर्तन केवल बख्यान, दिन कीर्तन केवल बख्यान, अन्य दिन कीर्तन केवल बख्यान, दिन कीर्तन केवल बख्यान। केवल बख्यान। गृहस्थ में सोए निर्वाण, सोए निर्वाण, सोई निर्वाण, सोई निर्वाण। ऐसा बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आनंद सिंह को समझाते हैं, गृहस्थ धर्म प्रधान है, प्रधान। कहते देखो मैं भी अपने बालक अपने गोद में लेकर बैठा हूँ ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे गुरुओं ने गृहस्थ धर्म पालन करके दिखाया है ना, क्या जरूरत थी उन्हें हमें समझाने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। देखिए गुरु अर्जन देव जी महाराज क्या कह रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ये बात आनंद सिंह जी को समझा रहे हैं, असल में हम सबको समझा रहे हैं। नानक सतगुर पेटे पूरी होवे जुगत, हसंदिया खिलंदिया पैरंदिया खवंदिया, हसंदिया खिलंदिया पैरंदिया खवंदिया, विचे होवे मुकत मुकत। यहाँ से बोलिए धन करना। कहते गृहस्थ धर्म कितना प्रधान है और कितना आनंदमय है। इसमें तू मुक्त हो जाएगा। नानक सतगुरु बेटी है पूरी होवे जुगत। बस जुगति को अपना ले तो गृहस्थ धर्म में रहकर प्रभु को पालेगा। नानक सतगुरु बेटी है, सतगुरु को पालेगा। और कैसे पालेगा? हंसते हुए, खेलते हुए, कपड़े पहनते हुए अच्छे अच्छे, खाते हुए अच्छा अच्छा, सब कुछ करते हुए। साधु भूखे रहते हैं, न पहनने को, न खाने को, न खेलना, न हंसना। तो गृहस्थ में रह के चारों काम कर सकता है और गुरु को पा सकता है। जुक्ति अपना ले। जुक्ति क्या है? अमृत वेला गुरु को दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पसंदिया खेलंदिया पहनंदिया खावंदिया विच होवे मुकत। अब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज साखी सुना रहे। कहते एक साधु विरक्त बैठा है जंगल में कुटिया डाल के, नाम जप रहा है। हर 2-3 दिनों बाद उसे भूख लगती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन को जीता हुआ है,
2-3 दिनों बाद उसे भूख लगती है। जब भूख लगती है बहुत तीव्र, तब शहर में चला जाता है, कस्बे में चला जाता है कि कुछ किसी घर से कुछ मांग लेता है और खा लेता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। आज भूख लगी, ये उठा गया, देखा एक हवेली के बाहर बहुत भीड़ लगी है। वहाँ जाके पूछता है यहाँ क्या है? क्या लगा, इस सेठ के लड़की की शादी है और कई हलवाई लगाए, कई प्रकार के पदार्थ बन रहे हैं, पकवान बन रहे हैं और सबको बुलाया कि सब खा लो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हज़ारों की भीड़ है, तो ये भी खड़ा हो गया कि मुझे भी मिल जाएगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पर सुबह से लेके शाम हो गई, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सुना रहे, सुबह से लेके शाम हो गई, ये साधु खड़ा है एक तरफ, पर किसी ने पानी भी नहीं पूछा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। भूख लगी है, सुबह से शाम हो गई, सब भोजन खा रहे हैं, सबको बुलाया जा रहा है, बिठाया जा रहा है। इस साधु की तरफ किसी ने देखा भी नहीं, ध्यान ही नहीं दिया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये साधु चुपचाप शाम को वापस चला गया अपनी कुटिया में और समाधि लगा के बैठ गया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। वाह, समाधि में लीन है, आवाज़ आई, आंखें खोलिए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। आंखें खोली तो सामने देव मनुष्य खड़े, बहुत सारे। कहते हैं आप कौन? कहने लगे हम भगवान के दूत हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें भगवान ने भेजा आपके पास। कहता आपके हाथ में ये मशाले क्यों हैं? इतने सारे लोग। कहने भगवान ने हमें भेजा है कि मेरे प्यारे का निरादरी हुई है, मेरे प्यारे की, आप उनके प्यारे हो, दिन रात उनकी भक्ति में लीन रहते हो। भगवान से देखा नहीं गया कि जिस हवेली के बाहर, जिस सेठ को उन्होंने इतना धन दिया, सब कुछ दिया, आप उसकी हवेली के बाहर खड़े रहे सुबह से लेकर शाम तक और आपको पानी तक नहीं पूछा। भगवान को बहुत दुख हुआ है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से सुनना, भगवान को बहुत दुख हुआ है और उसने कहा है कि जाओ सारे गांव को आग लगा दो, सारे शहर को आग लगा दो, ये शहर रहने लायक नहीं। और शुरुआत करना उस हवेली से जहाँ पर मेरा प्यारा भूखा गया है, जहाँ से सबसे पहले आग वहाँ लगाना। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और कहने लगे कि हमें हुक्म दिया कि आपको साथ में लेके जाए, आपकी आंखों के सामने आग लगाई जाए, जो ने आपकी इतनी बड़ी निरादरी की, आपके सामने भस्म हो जाए सब। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। चलिए हमारे साथ। साधु कहने लगा भाई ये क्या कह रहे हो आप? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। किसको आग लगानी है? किन्होंने निरादरी की है? अगर भगवान ने मेरी किस्मत में रोटी लिखी होती आज देना, तो रोकने वाला कौन होता है? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। देने वाला परमात्मा है। अगर उसने नहीं लिखी आज मेरे किस्मत में रोटी, तो वो सेठ क्या कर लेगा नहीं देने का? उसके हाथ में कहाँ है ताकत ना देने की? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गलती भगवान की है, उसकी है जो उसने मेरे नहीं लिखा, और मैं सजा दूँ सेठ को बेचारे को। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे शहर को फूंक दो? नहीं, परमात्मा से जाके कहो भाई आपकी गलती है या आपका कोई इम्तिहान है, आप जानो, मैं नहीं जानता, पर ऐसे मेरी वजह से इतने लोगों को दुख ये मैं देख नहीं पाऊँगा। मेरी बेनती है आप लोग वापस चले जाइए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। देव लोगों ने बहुत कहा कि चलो हमारे साथ, पर ये नहीं गए। कहने के भगवान से कह दो, और मैं तुम्हें भी हुक्म दे रहा हूँ कि चले जाओ वापस। परमात्मा से जाके कोई रोटी तू देता है, सेठ नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। परमात्मा से जाके जब ये बात कही देवदूतों ने, परमात्मा कहने लगे अच्छा, वो कहता कि देने वाला मैं हूँ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सब कुछ मेरे हाथ में ही है। परमात्मा इम्तिहान ही तो ले रहा था उसका। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इम्तिहान वो नहीं था, इम्तिहान ये था कि साधु खड़ा कहाँ पे, किसी ने उसकी निरादरी की तो अब जाके उसको क्या सजा देगा? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तो भगवान उसी वक्त प्रकट हुए, वो आंखें बंद करके बैठा। कहने लगे अब आंखें बंद मत कर, आज के बाद तुझे आंखें बंद करके मुझे अंदर देखने की ज़रूरत नहीं है, तू जहाँ दिखेगा मैं ही दिखाई दूंगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरी अवस्था पाली है तूने, तेरे अंदर से बैर विरोध खत्म हो गया है, साधु हो तो ऐसा हो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे अगर साधु बनना तो ऐसा बनना कि सब कुछ सह जाना। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर गृहस्थी बनना है तो ऐसे बनना। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे हमारे लिए शिक्षा है। और दो पंक्तियाँ पढ़ लें, विचार आगे बढ़ाते हैं।
गृहस्थ में सोए निर्वाण, सोए निर्वाण, गृहस्थ में सोई निर्वाण, सोई निर्वाण, गृहस्थ में सोए निर्वाण, सोए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जैसे सर सरता सकल में समुद्र बड़ो मेर में, सुमेर बड़ो जगत बखाने, तरवरे बिखे जैसे चंदन, बिरख बड़ो तात में, कनक अति धन गुरु नानक। भाई साहब गुरदास जी कह रहे हैं, जैसे सर सरिता सकल में समुद्र बड़ो, जितनी भी नदियाँ नाले सब कुछ हैं, सबसे बड़ा क्या है? समुद्र। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। मेर में सुमेर बड़ो जगत बखान है, पर्वतों में सबसे बड़ा पर्वत है सुमेर पर्वत। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। वृक्षों में सबसे कीमती है चंदन, तरवर बिखे जैसे चंदन बिरख बड़ो, धातु में कनिक अति उत्तम कैम मान है। धातु में सबसे उत्तम धातु कौन सी है? सोना। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पंछियन में हंस, मृगराजन में शार्दूल। हंस पक्षियों में सबसे बड़ा है। जंगल में सबसे ताकतवर किसे माना जाता है? राजा जंगल का शेर। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। रागन में श्री राग, जितने भी राग हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में 31 राग हैं, श्री राग को मुख माना जाता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। रागन में श्री राग पारस पखान है, जैसे पत्थरों में पारस सबसे कीमती माना जाता है वो भी पत्थर पर पारस है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। इसी प्रकार ज्ञानन में ज्ञान और त्यानन में त्यान गुरु। चाहे जितने मर्जी वेद शास्त्र पढ़ लो, जो ज्ञान गुरु देता है वो सबसे श्रेष्ठ है। जिसका भी ध्यान लगा लो, किसी का भी, जो ध्यान गुरु के चरणों में लगना है वो सबसे श्रेष्ठ है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। इसी प्रकार सकल धर्म में गृहस्थ प्रधान है। जितने भी धर्म हैं, जितने भी आश्रम है, सबसे प्रधान आश्रम है, धर्म है गृहस्थ धर्म, जिसमें गुरु ने हमें रखा है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गृहस्थ आश्रम। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे अभी गृहस्थ आश्रम कैसा हो? अगर गृहस्थी हो तो कैसा हो? कहने लगे जंगल है, जंगल में शिकारी शिकार खेलने आया कि मारूंगा, उसका काम है, शिकार करता है, भोजन खाता है। बरसात हो गई, काले घने बादल, रास्ता भटक गया, शिकार तो कोई मिला नहीं, सुबह से रात हो गई, भूखा भटक रहा है। भटक भटक कर थक थक कर ऐसी हालत हो गई कि अब लगता है कि जैसे प्राण निकल जाएंगे, भीग भी गया है बुरी तरह से और चलने की ताकत नहीं, और उससे लग रहा है कि शायद मैं सुबह तक बचूंगा ही नहीं इतनी ठंड में। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। वो एक पेड़ के नीचे आके बैठ गया और कांप रहा है बहुत बुरी तरह से। लकड़ियाँ इकट्ठी करने की कोशिश की कि आग जलाने पर, लकड़ियाँ गीली हैं, आग कैसे जले? फिर से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर सूखी कुछ मिली भी कहीं कहीं से तो आग नहीं है जलाने के लिए। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। ये चीज़ ऊपर एक जोड़ा बैठा है टहनी के ऊपर, उसी पेड़ में घोंसला बना के एक पशु, एक कबूतर और एक कबूतरी रहती है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। ये घटना गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सुना रहे हैं कि गृहस्थ हो तो कैसा हो। कबूतर कबूतरी ये सारा दृश्य देख रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं।
और एक दूसरे से बात करते हैं कि ये हमारे घर आया अतिथि है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी पेड़ के शरण में है, हमारे पास आके बैठा है, हम इसकी कोई सेवा करें। बेचारा तकलीफ़ में कांप रहा है, भूखा भी है, अधमरा हुआ है। तो कबूतरी कहने लगी हम क्या कर सकते। कहते वो सामने देखो गांव दूर आग जल रही, मैं छोटे से कुछ टुकड़े लकड़ी के उठा के ले आता हूँ, उसे उसके पास फेंक देता हूँ, ये जला लेगा किसी तरह से आग। तो कबूतर ने कहा ठीक है। कबूतर गया और गांव से जाके एक छोटी सी लकड़ी जो जल रही थी उसे ले आया, जिसमें थोड़ी आग बाकी थी, और उसके पास लाके फेंक दी। इसने देखा कि लकड़ी गिरी आग की। इसने लकड़ियाँ ढूंढनी शुरू की कि आग लग जाए, पर लकड़ियाँ गीली, और लकड़ियाँ बड़ी लकड़ियाँ आग नहीं पकड़ती, इतनी छोटी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कबूतरी अब कबूतर से कहती है देखो ना, आपने इतनी मेहनत की है, व्यर्थ ना चली जाए। अभी सूखी लकड़ियाँ यहाँ मिलेंगी नहीं, और आग भी इतनी छोटी जो चिंगारी है वो आग पकड़ेगी नहीं बड़ी लकड़ियाँ। हमारा जो घोंसला है वो सूखी लकड़ियों से बना है, बारीक लकड़ियों से। अगर हम इसे अपना घोंसला दे दें तो इसकी आग जल जाएगी और ये बच जाएगा। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं कबूतर की बात मानकर कबूतर दोनों ने मिलकर घोंसले को धक्का दिया, नीचे वो नीचे गिर गया। उसने देखा नीचे घोंसला गिरा है, बारीक लकड़ियाँ। उसने वो चिंगारी दिखाई, तुरंत आग बल गई, जल गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो खुश हो गया, उसने बड़ी लकड़ियाँ बीच में डाल दी, आग बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उसे गर्मी मिलने लगी, वो शांत हो गया, प्रसन्न हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब कबूतर कबूतरी से कहते हैं हमने इसका एक दुख तो दूर कर दिया, आग जला दी, गर्मी मिल गई, अब इसकी भूख लगी, उसका क्या करें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे घर में आए वो अतिथि है, हमारा फ़र्ज़ है जो हम सोके उसे खिलाएं। कबूतर कहती है हमारे पास क्या, हम क्या खिला सकते हैं। तो कबूतर उसे कहता है एक काम करता हूँ, देखो ये मांसाहारी है, जंगल में शिकार करने आया था, शिकारी। तो अगर मुझे आज्ञा दे, तो मुझे अगर कहे तो मैं अपने आप को इस आग में गिरा देता हूँ, ये मुझे भून कर खा जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज समझा रहे गृहस्थी हो तो कैसा हो, और हम कैसे हो चुके हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबूतरी कहती है नहीं, आप नहीं रहोगे तो मेरा जीने का क्या फ़ायदा, मैं चली जाती हूँ, आप रहो। दोनों आपस में लड़ने लगे, नहीं मैं जाऊँगा आग में गिरूँगी, वो कहती मैं गिरूँगा आग में। लड़ते दोनों आग में गिर पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शिकारी ने जब देखा दोनों गिरे आग में तो समझ तो गया कि क्या हो रहा है। पहले आग आई, फिर घोंसला गिरा, फिर अपने आप को दोनों कुर्बान कर रहे हैं मेरे भोजन के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शिकारी की आंखों में आंसू आ गए, और वो मरते भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं उसे देख रहे हैं कि हमें खा के उसका पेट भर जाएगा, इससे प्रसन्न हो रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आग में गिर के भी प्रसन्न हो रहे हैं। शिकारी ने उन्हें खाया, इसीलिए खाया कि उन्होंने कुर्बानी दी अपनी इसके लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं आगे की घटना भी बताइए, बहुत लंबी है ये घटना, कि आगे जाके दोनों राजा रानी बने। परमात्मा ने पूछा क्या आपने अपने अतिथि के लिए, सत्कार के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। दोनों को, एक को राजा का जन्म, उसको दूसरी को रानी बना के जन्म दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात यहाँ पर ये आगे की घटना है, पर यहाँ पे बात ये है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने की गृहस्थी हो तो ऐसा कोई दरवाजे पे भूखा आ जाए वापस ना जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गृहस्थ का धर्म है ये, गृहस्थ को दिया है सब कुछ परमात्मा ने, उनके लिए जिनके पास नहीं है उनकी सेवा करने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर गृहस्थ आश्रम है कि सब कुछ होते हुए घर से कोई खाली चला जाए, कोई भूखा चला जाए, कोई किसी तरह से चला जाए, तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं उसका गृहस्थ आश्रम परवान नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये सबसे बेसिक चीज़ है। मैं ऐसे कईयों को जानता हूँ हमारी संगत में है, बहुत प्यारे गुरु के, उनके घर में कोई आ जाए ना, कभी भी माथे पे त्योड़ी नहीं चढ़ती कि कहाँ से आ गया, क्यों आ गया। उसी वक्त बड़े चाव से उनको खाना पूछते हैं और मन से खिलाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आजकल तो हम लोगों ने लगाना शुरू कर दिया बिवेयर ऑफ डॉग्स, के अंदर कुत्ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ताकि कोई आ ना जाए। पहले लिखते थे अतिथि
देवो भव, कोई आए बस हर से बोलिए धन गुरु नानक। अब कोई आ जाए तो कहते हैं अरे बुरे टाइम पे आ गया, खाना खाने बैठे थे, हर से बोलिए धन गुरु नानक। हम सबका ये हाल है। पर गृहस्थ धर्म में जब कोई आए, देखो ना गुरु गोविंद सिंह जी महाराज समझा रहे हैं, कोई आम आदमी नहीं, हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अंगद देव जी महाराज के पास भाई जगह आ गया था, ये बहुत टाइम हो गया इसलिए 10 शॉर्ट में ले रहा है। भाई जगह आया था, 5 मिनट के बस ले लेते हैं, 5-10 मिनट। और वो आके बेनती करते हैं, पातशाह मैं बहुत भटका हुआ मन, कुछ रास्ता दिखाइए। गुरु अंगद देव जी कहते क्या रास्ता चाहिए? कहने लगे मेरा मन बड़ा उदास रहता है, मेरे मन को शांति नहीं। सब कुछ है मेरे पास, धन है, दौलत है, घर है, बीवी है, बच्चे हैं, सब ठीक है, कोई गलत भी नहीं है, ऐसा भी नहीं किसी के साथ मेरा कोई क्लेश है, पर फिर भी मन को शांति नहीं है। गुरु अंगद देव जी कहने लगे धन है तू, जिसे ज्ञान तो हुआ कि सब कुछ इन सब में शांति नहीं है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। फिर तो इंसान समझता है कि सब कुछ है तो शांति है, शांति इन सब में नहीं है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे भी तकलीफ क्या है? कहने लगे मेरा मन किया कि मुझे शांति कैसे मिले, तो मैं एक जोगी के पास चला गया। तो जोगी कहने लगा अगर तुझे शांति चाहिए तो सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पास आ जा, अपनी स्त्री, अपने बच्चे, अपना परिवार, अपना बिजनेस सब छोड़ के आ जा। तो मैंने इससे पूछा कि एक शर्त है, मैं पूरी करके आ जाता हूँ जो आप कह रहे हो, फिर शांति मिल जाएगी? कहने लगे नहीं, इतना आसान थोड़ा है। उसके बाद 1 साल तक मैं तेरे हाथ में भिक्षा पात्र दूंगा, तो भिक्षा मांग कर खाएगा। कहने उसके बाद शांति मिल जाएगी? कहने लगे नहीं, उसके बाद फिर दूसरे कार्य हैं। फिर हर जी बोलिए धन गुरु नानक। तो कहने लगा क्या गारंटी की शांति मिल जाएगी? कहते गारंटी नहीं है, कोशिश कर सकता है। तो प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगे पातशाह ना मेरी अवस्था कि मैं अपना परिवार छोड़ सकता हूँ, इतनी ऊंची अवस्था भी नहीं है, इतना भी बैराग नहीं जागा है मुझे, पर मन को शांति चाहिए। तो गुरु अंगद देव जी कहने लगे एक बात समझ, अगर उस साधु ने तुझे ये बात भी कही थी ना, अंतर्जामी है, उसी जोगी ने तुझे कहा था ना कि अगर सारा संसार जोगी बन जाए तो शांति हो जाए सारे संसार में। कहने लगा उसने कहा था सारा संसार जोगी त्यागी हो जाए। तो को उससे पूछ अगर सारा संसार ही त्यागी हो जाए तो भिक्षा कहाँ जाके मांगेगा? यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भोजन कहाँ से खाएगा अगर किसान बीजेगा नहीं, फसल कटेगी नहीं, कोई पीसेगा नहीं, कोई पकाएगा नहीं, तुझे खिलाएगा कौन? हर जी बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए गृहस्थ धर्म सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर। मेहनत करके खाता है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। हर जी बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहते हैं मन को शांति न गृहस्थी में है न सब कुछ छोड़ छाड़ के, मन को शांति तो एक ही में है, एक ही बस। प्रभु जी को नाम जपत मन चैन, प्रभु जी को नाम जपत मन चैन, प्रभु जी को नाम जपत मन चैन, प्रभु जी को नाम जपत मन चैन। हर से बोलिए धन गुरु नानक। सुख नाही रे हर भगत बिना, मन को सुख केवल नाम दे सकता है बस। चाहे वो गृहस्थी है चाहे वो साधु है, साधु हो तो फिर वैसा हो हर चीज़ सहज है, और गृहस्थ हो तो ऐसा कि अपना सब कुछ त्याग कर दे दूसरों की सेवा के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ तक कि उस पशु पक्षी, उन पक्षियों ने अपने प्राण तक त्याग कर दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हमसे दसवंध तक नहीं निकलता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमारी चॉइस है, और देखो चॉइस करने की ज़्यादा सोचने की ज़रूरत क्या है। हमारे गुरु ने गृहस्थ धर्म अपनाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कभी मन में ऐसा ख्याल आया ना, ऐसे अभी भी लोग हैं मुझे मिलते हैं, मैं वापस भेजता हूँ उनको, आते हैं मेरे पास, हम सब छोड़ छाड़ के आ गए, सारा कुछ समझाना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार हमारे साहब दास गया तो एक लड़का मिला मुझे, छोटा सा बच्चा 13-14 साल का। कहने लगे मैं 6 महीने से इधर ही हूँ। मैं क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कहने लगे नाम जपने आया था, किसी चीज़ में मन नहीं लगता। बोला माता पिता? कहता माता पिता इधर आए थे, रो रो के चले गए, पर मैं उनके साथ गया नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर उसे समझाना पड़ा, भाई अपने फ़र्ज़ निभा,
माता पिता की खुशी लेके तो थोड़ा भी नाम जपेगा ना, वो बहुत सार्थक होगा। जो चीज़ पाने तो यहाँ पे आया है। गुरु रामदास जी क्या क्या रहे हैं वो तो सुन, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक। सच कहता हूँ, बाबा नंद सिंह जी के वचन है, जिसने अपने माता पिता की दिल से आशीष ले ली, दिल से, कि उनके आगे कभी ऊंचा बोले ही ना, उनकी हर बात हाँ बोल दे। और अगर कोई ना समझ में आए, समझो सत्संग में आने के लिए रोकते हैं, ऐसे भी माता पिता होते हैं, पर उनके आगे बोले ना, सत्संग में आए पर वो डांटे तो डांट सह ले, बोले ना, चुपचाप सह ले, और हर बात जितनी हो सके उनकी मान ले, उसके आगे जोर से ना बोले। कहते ऐसा बालक हो, बाबा नंद सिंह जी के वचन, उसे कोई जब तब करने की भी ज़रूरत नहीं, गुरु नानक खुद उसके पास आएंगे, खुद आएंगे गुरु नानक, जाना भी नहीं पड़ेगा ढूंढने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता पिता का सत्कार, माता पिता की सेवा इतनी इम्पोर्टेंट है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई यहाँ पे 8-8, 10-10 घंटे बिताता हो, रात से आया हो, सुबह तक सेवा करता हो, पर माता पिता की खुशी लेकर ना आया हो, फल नहीं लगेगा भाई। और अगर माता पिता की सेवा करके, उनको प्रसन्न करके थोड़ी देर के लिए भी आया हो, फल लग जाएगा। हाँ, और अगर आने से बिल्कुल ही रोकते हों, जैसे देखिए ये समझने की बात है, गुरु नानक पातशाह को मेहता कालू जी, उनके पिताजी हमेशा रोकते रहे कि मत जा दुनिया को तारने, 20 रुपये दिए कि जा प्रॉफिट का सौदा करके आए, पर वो क्या करके आए? उन्होंने हाथ तक उठा दिया गुरु नानक पातशाह पे। गुरु नानक पातशाह ने पर अपना राह नहीं छोड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सही रास्ता नहीं छोड़ना है, पर उनके आगे गुरु नानक पातशाह कभी बोले नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सर झुकाए खड़े रहते थे पिता के आगे कि पिता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे, हमें ऐसे गृहस्थी बनने की दात बख्श दे, हम भी ऐसे बन जाए कि सेवा में ही जीवन समर्पित हो जाए। जब सुबह घर से बाहर निकला करो ना, एक मन में एक लक्ष्य लेके निकला करो, बड़ा आनंद हो जाएगा जीवन में। मैं सच कहता हूँ, जब भी निकलो कि शायद कहीं कोई सेवा का मौका मिल जाए, कोई ज़रूरतमंद मिल जाए जिसे मैं खिला सकूँ, कोई मिल जाए जिसकी मैं मदद कर सकूँ। अरे इतनी खुशी भर जाएगी ना जीवन में, इतना आनंद भर जाएगा ना, करके देखना। निकलने के टाइम ये मन में भावना नहीं कि घर से निकलो, दुख खत्म, केवल खुशी रहेगी चेहरे पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गृहस्थ में सोए निर्वाण, सोए निर्वाण, सोई निर्वाण, सोई निर्वाण। गृहस्थ में सोए निर्वाण, सोए निर्वाण, गृहस्थ में
धन गुरु नानक। राम कली महला तीजा आनंद क्योंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर का पाया सहज से मन वजिया वाधाया राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां आनंद होवा सतगुरु मैं पाया मन मेरा तू सदा रो हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना साहिबा क्या नहीं करते रे करता तेरे सब कुछ है जिलते सो पावे कहे नानक सच्चे सैल क्या नहीं घर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन फुका सब गवाइया करसान सुख मन आए वस्या जिन इच्छा सब पूजाइया साचा नाम मेरा आधारो साचा नाम मेरा वाजे पंज शब्द घर सबागे शब्द वाजे कला जी करतारियां पंज दूत वस कीते काल कंटक मारिया सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल सूरे सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुरु रे पर पूरे बिनवंद नानक गुरु चरण लागे वाजे अनहद तुरे सलो पवन गुरु पानी पीता धर्म हजूर कर्मी आपो अपने जिन्नी नाम ध्याया जिन्नी नाम ध्याया जिन्नी नाम ध्याया जिन्नी नाम ध्याया वाहे गुरु 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 मशक्कत काल नानक ते मुखे छोटे नाल बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह
जय गुरु जी। हमारे प्यारे गुरु जी के चरणों में एक प्यारी अरदास। हे गुरु महाराज, हम आपकी शरण में हैं, हमें अपना बना लो। हम चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, आपकी शरण में हैं, हमें अपना बना लो। आप हमारे हाथ पकड़ लो, हम आपका हाथ पकड़ेंगे तो हमसे छूट जाएगा। आप ही हमारा हाथ पकड़ लो, हमें अपना बना लो। हे गुरु महाराज, हम पर तरस करो, हमें अपनी सेवा से, सिमरन से, नित्य नेम से हमेशा जोड़े रखना। हमें कभी भी अपने चरणों से दूर ना करना। हमें अपनी भक्ति का दान देना, श्वास श्वास सिमरन की दात बख्शना, विनम्रता की दात बख्शना। हे गुरु महाराज, हमें 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से हमेशा दूर रखना। हमसे कभी भी कोई भी ऐसा काम मत करवाना जो आप जी को अच्छा ना लगता हो। हे गुरु महाराज, हमें बख्श दो। हमारे इस जन्म के, हमारे पिछले जन्मों के, हमारे जानबूझकर किए गए, हमारे अनजाने में किए गए बुरे कर्मों को, गुनाहों को बख्श दो। अब हम आपकी शरण में हैं, हमें अपना बना लो, हमें अपना बना लो। गुरु महाराज, हमारे बस में ये कुछ भी करना नहीं है, आप ही तरस करो और हमसे सब कुछ करवा लो। हम भूलनहार हैं और आप बख्शनहार हो। हमें बख्श दो, हमें बख्श दो, हमें बख्श दो, हमें बख्श दो। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा शिव जी सदा सहाय।
नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की।